It's a fourth lecture in which we'll be discussing many important topics. This will be very helpful to you for the upcoming GPSC, NEET MDS, as well as all the upcoming dental exams. Many times in your interview preparation, they will ask you simple questions. What is RCT? How will you do? How will you manage sodium hypochlorite? What is the percentage? What are the outcomes? What are the disadvantages of doing RCT? When RCT is contraindicated? So this all these basic questions can be asked in your prelim also. The main purpose of root canal treatment is to you will have various options. So depending upon your logic and depending upon your content with the endodontics, you can answer it. So now we will be discussing endodontic uh, procedures in which we will have first root canal treatment. Till now we have discussed many things to save the pulp, to protect the pulp. Okay. So can anyone tell me what are the agents used for indirect pulp capping? You can comment in the comment box. Send your doubts. First of all, let all the students mark their presence. Afterwards, you can comment here. Agents for pulp capping, indirect as well as direct pulp capping. Which are the agents? Nowadays, our previous materials have been routine, calcium hydroxide, all these are routine, but new advanced materials, they are asking question regarding leather mix paste. What is that? So can anyone tell me what are the agents used for pulp capping? This is an easy question. Agents for pulp capping. Which are the agents for pulp capping? At least you must know one or two, because in your interview this is a common question. पल्प कैपिंग क्या होता है, कब करते हैं, क्यों करते हैं? अभी तक को किसी ने आंसर नहीं दिया है. पल्प कैपिंग में क्या क्या यूज होता है? आप तो क्लिनिक में करते होंगे. ये तो हमारी मोनोपोली है. पहले पल्प कैपिंग करिए, फिर 21 दिन के बाद बुलाइए, डेंटिन बनेगा नहीं, फिर आप आरसीटी कर दीजिए. ऐसे बहुत सारे डेंटिस्ट करते हैं. तो वो क्या एजेंट यूज करते हैं पल्प कैपिंग में? कमेंट करिए नीचे. All these are easy questions which you must answer. Otherwise, I will think that you don't know this answer. Those who are present, please tell me what we use for pulp capping. Okay, पल्प कैपिंग दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. डायरेक्ट में क्या हो गया होता है, एक्सपोजर हो गया होता है, और यहाँ पे यू आर नियर द पल्प. ओके, तो यू विल यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
hard setting calcium hydroxide. Okay, this also provides you this therapeutic effect, dentin formation. Okay, all these are the features. Nice. ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, उसके ऊपर जीआईसी भी दे सकते हैं। फिर 21 डेज के बाद बुलाना है और आईओपीए में देखना है कि डेंटिन का ब्रीच बना है या नहीं। वो तो क्लिनिकल देखोगे, लेकिन पेशेंट को आपको पूछना पड़ेगा क्या कि कोई सिम्टम है, आपको पेन है। तो पेशेंट अगर सिम्टम फ्री है तो आप आगे जाके सारवार मतलब you can go for permanent restoration in case you are given a temporary restoration. Okay, now tell me what is the composition of ladder mix paste. Ladder mix, ठीक है, कोई पेस्ट बोलता है, कोई सीमेंट बोलता है, इसका कंपोजिशन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पल्स में तो होगा ही होगा। फिर कैरियर स्लो कब होगा, कैरियर स्लो में क्या होता है, कैरिडेक्स में क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस बार बार आते हैं। सिंपल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेडर मिक्स पेस्ट में क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होगा और एक स्टीरॉयड होगा। नाइस, ठीक है, तो एंटीबायोटिक डेमेक्लोसाइक्लिन होगा और ये होगा ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड। ठीक है, तो ऐसे आपको जब भी रिवाइज करते हो तो आपको ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एनओ में पढ़ा था उसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। नाउ वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, एक्सेस कैविटी। तो आरसीटी में पहले एक्सेस कैविटी ओपन करेंगे, फिर बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन और फिर ऑब्जर्वेशन, फिर पोस्ट आरसीएफ। ठीक है, रूट कैनाल फिलिंग वाला जो होता है वो। नाइस, सब आंसर अच्छे दे रहे हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप ऐसा भी प्रिपरेशन करना कि और नए नए कौन से एडवांस्ड मटेरियल्स है जो यूज़ होते हैं एंडो में, क्योंकि अभी एक पैटर्न बन गई है। कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पूछ लेंगे, कंपोजिशन, फिर उसका वाटर पाउडर रेशियो है, लिक्विड पाउडर रेशियो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऐसा। ठीक है, तो एक बायोडेंटिन भी एक नया मटेरियल है जिसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस किया हुआ है। तो इसके सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो ये बायोडेंटिन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सेस कैविटी, तो हर कोई एक्सेस रूट कैनाल तो करता ही होगा। तो एक्सेस कैविटी के क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना है। ठीक है, पहले तो स्ट्रेट लाइन एक्सेस, ठीक है, एपिकल फोरामेन तक आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी एबल टू व्यू अनऑब्स्ट्रक्टेड, कोई बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। और फाइल शुड पास into the canal without touching any of the walls. Direct file should enter the foramen or this root canal. Remove the anterior roof, ठीक है, यहाँ से पल्प का रूफ कंप्लीटली निकाल देना है। फिर तीसरा ये है कि ऐसा नहीं कि दांत को पूरे का पूरा निकाल दो, यू हैव टू कंजर्वेटिव, यू हैव टू फॉलो कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, नाउ कैसे आप बचा सकते हो, तो इन द सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन, ठीक है, कहाँ, जहाँ आपका एपेक्स होता है वहाँ पे आपको 0.1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एपाइकल फोरामेन, योर प्रिपरेशन शुड बी 0.1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द एपाइकल फोरामेन। ठीक है, और इस्थमस, इस्थमस क्या है, ठीक है, तो दो कैनाल्स के बीच एक कम्युनिकेशन होता है, वो कंप्लीट भी होगा और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें पल्प भी हो सकता है और बैक्टीरिया के लिए भी वो एक हार्बर उसके लिए जगह देता है। ठीक है,
अब कैनाल के कॉन्फ़िगरेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले टाइप में क्या है, सीधा ऊपर से नीचे तक। दूसरे में क्या है, बीच में इकट्ठा होता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तीसरे में क्या है, दोनों अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। और चौथे में क्या है, लास्ट में डाइवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये डायग्राम के साथ प्रिपरेशन करना रखें। ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जीपीएससी में तो पूछते नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, नाउ देर आर टाइम्स दैट रूट्स विल बी कर्व्ड। ठीक है, डायलेसरेशन, ये हमने ओपी में पढ़ा था। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए डायलेसरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, तो क्या होता है, एक तो एक्सट्रैक्शन में दिक्कत होता है, आरसीटी में दिक्कत होता है, एबनॉर्मल आर्च लेंथ होगी, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो ऐसे आपको आंसर देना पड़ेगा इंटरव्यू में। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैनाल्स, कभी कभार एक्स्ट्रा कैनाल्स भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, तो अपर का जो 6 होता है ना, ठीक है, वहाँ पे मिसियो बक्कल जो होती है, वहाँ पे 2 कैनाल मिसियो बक्कल 2B देखने को मिलती है। फिर लोअर मोलार्स, वहाँ पे डिस्टल कैनाल एक एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, कभी 3 होती है तो एक एक्स्ट्रा 4 भी हो सकती है। मैंडिबुलर इंसाइजर्स एंड प्रीमोलर्स कैन हैव 2 कैनाल्स। ये सब एक्स्ट्रा कैनाल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है उसके बारे में बताया है। नाउ एक्सेस कैविटी डिजाइन। ठीक है, तो आपको पहले तो क्या करना है, जो भी रिस्टोरेशन खराब है और कैरीज है वो सबको रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर आपको डेप्थ चेक करनी है प्रिपरेशन की। ठीक है, फिर walls of the pulp chamber are flared to give a funnel shape with the large diameter toward occlusal surface। तो यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब डाइवर्ज होगा, ऐसे कन्वर्ज नहीं होता है कभी, ऊपर जाके डाइवर्ज होता है। ठीक है, ताकि आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस भी आ जाए और आपको रिस्टोरेशन में भी एडवांटेज मिले। फिर यू हैव टू रिमूव द रूफ ऑफ द पल्प चैम्बर। ठीक है, यहाँ से जो रूफ होता है वो कंप्लीटली उसको निकाल देना है। एक्सेस कैविटी इज आइदर लिंगुअल और ओक्लूजल, नेवर प्रॉक्सिमल और जिंजाइवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वो ओक्लूजल होती है, मतलब ऊपर से वो कर सकते हो या लिंगुअल से कर सकते हो, लेकिन मिजियल डिस्टल नहीं होती और जिंजाइवल से नहीं होती है। ये उसका फंडा है। फिर कभी कभार आपके पास रिस्टोरेशन तो होता ही है पीएफएम का। ठीक है, तब भी कोई लोग आरसीटी करते हैं, तो क्या करना है उसके लिए, राउंड डायमंड बर यूज़ करना है। पोर्सलेन के लिए वो एक्सेस कैविटी बना देगा, और फिर कार्बाइड का यूज़ करना है मेटल के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कि अगर कोई पीएफएम का रिस्टोरेशन है तो आरसीटी के लिए क्या क्या ध्यान रखोगे, तो पोर्सलेन के लिए डायमंड, पी डी, और मेटल के लिए कार्बाइड। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो नीचे, वो सब एक्सेस कैविटी की आउटलाइन है, लोअर और अपर में कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक रास्ता भी दिया हुआ है, अगर आपको मिजियोबक्कल 2 कैनाल देखनी है तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ग्रूव देखना पड़ेगा, और आपको ये सब क्लिनिकल स्टेप्स होते हैं, ये ऐसे थ्योरी बताने से अगर फ़ायदा रहता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको एक अगर कैनाल मिल जाए मिजियोबक्कल की,
तो एक रूल ऐसा है कि मेसियोबक्कल की कैनाल और पैलेटल के बीच में आपको एक देखने को मिलेगी कैनाल, मेसियोबक्कल 2। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या लिखा है? यू हैव टू लुक फॉर ए ग्रूव दैट एक्सटेंड्स बिटवीन मेसियोबक्कल टू पैलेटल। ठीक है, मेसियोबक्कल का आपको ओरिफिस मिल गया एक कैनाल का, फिर पैलेटल का ओरिफिस मिल गया, तो यहाँ बीच में एक ग्रूव देखना है, वहां पे मेसियोबक्कल 2 कैनाल होगी। अब स्पेशल केसेस, एक्सेस कैविटी में स्पेशल केसेस कब कब होते हैं और क्या क्या होता है? तो ऐसा होता है कि आइडियली तो रिस्टोरेशन को सब निकाल देना ही पड़ता है। ठीक है, नाउ कभी कभार क्या होगा, आप रिस्टोरेशन के रखोगे, ठीक है, रिस्टोरेशन को निकाल देना पड़ता है, लेकिन कभी कभार रिस्टोरेशन को हम रखते हैं। ठीक है, फिर आप आरसीटी करते हो तो क्या क्या हो सकता है? एक तो कोरोनल लीकेज में होगा, जो भी रिस्टोरेशन होगा वो उसकी इंटीग्रिटी चली जाएगी और वो लीक होना चालू हो जाएगा। फिर पुअर एक्सेस, क्योंकि रिस्टोरेशन होता है उसको रखना है और फिर भी आपको एक्सेस कैविटी ओपन करनी है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिस्टोरेशन को प्रिजर्व करने के लिए मिनिमल विजन होगा, मिनिमल एक्सेस होगा। फिर आता है ब्लॉकेज ऑफ द कैनाल। ठीक है, रिस्टोरेशन को रखा आपने इंटैक्ट और वहां से आपने एक्सेस ओपनिंग कर दिया चालू, तो रिस्टोरेशन के जो भी डैमेज है प्रोडक्ट्स, जो भी मटेरियल है वेस्ट, वो सब कैनाल के अंदर जाकर चॉक कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन फिल द कैनाल, दे कैन स्टक। और रिस्टोरेशन की प्रेजेंस के कारण कभी कभार बर की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है और परफोरेशन के चांस रहते हैं। तो ये तो अभी तक कोई करता है नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पूरे का पूरा रिस्टोरेशन को निकाल ही देते हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि सब रखो, अब एमालगम है तो इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है उसको क्यों वेस्ट करना, ऐसे थॉट्स थे पहले। ठीक है, तो ये पहला जो स्पेशल केस है वो कैसा है, रिस्टोरेशन जब एक्सटेंसिव होता है ना तब। फिर दूसरा आता है टिल्टेड क्राउन। अगर क्राउन टिल्टेड है तो, ठीक है, तो आपको ऐसा है कि रबर डैम आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप आराम से उसको देखना पड़ेगा एंगुलेशन का, बर एंगुलेशन, और आपको एक्सेस कैविटी का डायरेक्ट विजन होना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट टिल्टेड क्राउन्स में आपको खास ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर विजन होना चाहिए। ठीक है, तो टिल्टेड क्राउन्स में क्या क्या दिक्कत आती है? पहले तो कैनाल्स लोकेट नहीं होती है, क्योंकि विजन उसमें क्लियर नहीं होता है। गेजिंग, ठीक है, उसमें आप प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले सकते हो। परफोरेशंस, कभी कभार टिल्टेड होने के कारण आपको लगता है कि यहाँ पे कैनाल आएगा, लेकिन वो कभी कभार परफोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, आपकी फाइल एंगुलेशन में के कारण, कर्वेचर के कारण, टिल्टेड के कारण वो ब्रेक हो सकती है, सेपरेट हो सकती है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन का मतलब है फाइल ब्रेक होना। हम जो के फाइल यूज़ करते हैं, कोई भी रोटरी फाइल्स होती है, वो कैनाल के अंदर चली जाती है, तो हम इजी लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि फाइल चली गई, फाइल टूट गई। और अच्छी लैंग्वेज में ये बोलना है कि फाइल सेपरेट हो गई कैनाल के अंदर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फाइल इन द कैनाल। नाउ कैल्सिफाइड कैनाल्स। ठीक है, जब आप आरसीटी करोगे तो बहुत आपको परेशानियां होगी, क्योंकि कैल्सिफाइड कैनाल्स होती है। अब ये कैल्सिफिकेशंस कहाँ लिंक कर दिया आपको? देखो, पल्प स्टोन्स का क्वेश्चन आता था, ठीक है, ओएमआरडी में, ओपी में, डीएडीएच में। ठीक है, तो ये पल्प स्टोन्स क्या है? कुछ नहीं, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन इन द पल्प। ठीक है, वो ट्रू भी होते हैं और फॉल्स भी होते हैं। ट्रू मतलब सच्चे वाले, फॉल्स मतलब उसके टाइप के शेप। और उसके दूसरा क्लासिफिकेशन ये भी था, एक फ्री होते हैं, एक एम्बेडेड होते हैं और एक अटैच्ड होते हैं। ठीक है,
तो ये सारे पल्प के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पल्प स्टोन होगा वो कैनाल के ओरिफिस के ऊपर ही होगा। तो क्या होगा, आपको कैनाल का ओरिफिस निकालना पड़ेगा और तभी जाके कैनाल का एक्सेस मिलेगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कैल्शियम होता है, कैल्सिफाइड कैनाल्स, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जो भी कैल्सिफाइड कैनाल्स होती है उसको आपको चिलेट करना पड़ता है। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं उससे चिलेट करके तब जाके आप इजीली एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, अब कैल्सिफाइड कैनाल्स में आपको अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर आता है, अल्ट्रासोनिक हैंडपीस आता है, उससे आप ओरिफिस का एक्सेस ले सकते हो। उसमें प्रिसाइज रिमूवल ऑफ डेंटिन, ठीक है, जो जहाँ पे एग्जैक्ट डेंटिन निकालना है वो थोड़ा प्रिसिशन से निकलेगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज कैल्सिफाइड कैनाल्स, मुझे ही पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने कैल्सिफाइड कैनाल्स के बारे में बताया, उसके परसेंटेज बताए, फिर पल्प स्टोन्स के बारे में बताया, फिर कौन कौन से नए किलेटिंग एजेंट्स है, चिलेटिंग, ये सब बताया। ऐसे करके आपको इंटरव्यू में आंसर देना है। ठीक है, फिर आता है स्क्लेरोस्ड कैनाल्स। स्क्लेरोस्ड कैनाल्स, उसमें क्या होगा, आपको डाइज यूज करना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैनाल का ओपनिंग है, अल्ट्रासोनिक टिप्स भी होती है और लॉन्ग शैंक और लो स्पीड बर्स वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग आते हैं। तो अभी चलो ये आपको एमसीक्यू के लिए तो सही है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि आरसीटी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये सब आते हैं, एक्सटेंसिव रिस्टोरेशंस, क्राउन टिल्टेड कैल्सिफाइड कैनाल्स, स्क्लेरोस्ड कैनाल्स, और भी होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, बहुत सारे होते हैं। आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो आपको डिफेंड करना भी आना चाहिए। ठीक है, वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना हम आगे जाते हैं। वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन में एक्सेस कैविटी का हमने पूरा किया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थी, कैसे करना है, वो सब समझाया। अब आता है वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन, इसका भी एमसीक्यू भी आता है और इसके भी फुल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, या अभी इंटरव्यू के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि वर्किंग लेंथ का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आप जज करोगे, तो ये सब आपको आंसर देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा डाउट है, स्क्लेरोस्ड कैनाल क्या है। कभी कभार क्या होता है, एज के हिसाब से या कोई इरिटेंट के हिसाब से कैनाल के अंदर डेंटिन डिपॉजिट हो जाता है या फिर आर्ट टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है। तो उसमें से क्या होगा, स्क्लेरोस्ड मतलब कैल्सिफाइड के अलावा और भी कुछ रीजंस होते हैं, कैल्सिफिकेशन नहीं होता है, और भी रीजन ऐसे होते हैं कि जो कैनाल होती है ना वो कम नैरो हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है। ठीक है, उसका दूसरा नाम है कैल्सिफाइड। लेकिन कैल्सिफाइड कैनाल में क्या होता है, खाली कैल्सिफिकेशन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक तो एज होता है, एक ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन होता है, एक इरिटेशन होता है, एक क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस वाला होता है। ये सब के कारण क्या हो जाएगा, कैनाल जो होगी ना वो हमारी ओब्लिटरेट हो जाएगी, उसकी जो स्पेस होगी वो चली जाएगी।
उस स्पेस के अंदर डेंटिन भी आ सकता है और कैल्सिफाइड भी आ सकता है। बहुत सारे रीजंस के कारण वो ऑब्लिटरेट हो जाएगी, उसकी जगह जो इतनी होती है पहले बीच में वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इतना वॉल्स में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो स्क्लेरोस्ट मतलब ड्यू टू मेनी रीजंस द स्पेस ऑफ द कैनाल इज नैरोइंग और ऑब्लिटरेटेड। ठीक है, और कैल्सिफाइड कैनाल्स में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू वर्किंग लेंथ। और कोई डाउट हो तो पूछना, वी आर नॉट इन हरी टू फिनिश दिस लेक्चर, वी विल आंसर ऑल योर डाउट्स। वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन, तो वर्किंग लेंथ आपको कितना वर्क करना है रूट कैनाल के अंदर, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी देखो, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई भी चीज होती है ना वो परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एंडोडोंटिस्ट है फेमस, उन्होंने अलग अलग थॉट्स दिए होते हैं। ठीक है, कि किसी ने ये बताया होगा कि वर्किंग लेंथ 0.5 मिलीमीटर शॉर्ट होनी चाहिए, कोई बोलता है 1 मिलीमीटर होता है, कोई बोलता है 2 मिलीमीटर होता है, कोई बोलता है एग्जैक्ट होना चाहिए। तो वेन एवर यू आर आंसरिंग, you have to tell according to this book, according to Cohen, according to Engel, according to this scientist, working length is this. Okay, so this is a good option of answering according to Carranza, for example, पीडीएल की विड्थ इतनी होती है। ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट नए नए आ गए, उन्होंने अलग अलग रिसर्च किया होगा, फिर कुछ प्रूव किया है, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना वो आप बेस के साथ बोल रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो कि सर ये बुक के हिसाब से ये है। ऐसा मेरी एग्जाम में ही हुआ था, मेरा इंटरव्यू के एग्जाम में मुझे पूछा गया था कि मर्क्यूरी स्पिलेज, हाउ विल यू मैनेज ए केस ऑफ मर्क्यूरी स्पिलेज। तो मुझे पता था कि ये लोग मुझे खींचने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, मर्क्यूरी की हिस्ट्री चालू की कि ये टाइम से डेंटिस्ट्री में इवॉल्व हुआ, इतना परसेंटेज चलता है, टॉक्सिसिटी इतनी चलती है, और फिर स्पिलेज अगर हो गया तो हमको ये करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने बोला कि सर ये बुक में ये लिखा है, ये बुक में ये लिखा है, ये बुक में ये लिखा है, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। तो फिर मुझे पूछा कि आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे, तो मैंने बोला कि सर अभी वही मेरा डाउट है कि कौन सा यूज़ करना चाहोगे, अभी तक तो कोई मेरे केस आया नहीं है, लेकिन आएगा तो मैं एक बाय एक सबको चेक करूँगा, फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आगे जाके उसके लिए फॉलो करूँगा वो रूट, मर्क्यूरी स्पिलेज का मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे ऑथेंटिक आंसर्स और ऑनेस्ट आंसर बोलने हैं, मगअप आंसर्स वहाँ पे नहीं चलते, याद रखिए। हम जो बैठे होते हैं ना, जो हमारे एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग होता है। हमारी इंटरव्यू की बैच भी करवाई थी क्लास 2 डेंटल सर्जन की, उसके हम लेक्चर्स वो बताएंगे एक बार वीडियो लाइव, उसमें जो भी हमने रिकॉर्डर किए लेक्चर्स वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, कैसे अटक जाते हैं, कैसे इंटरव्यू का माहौल होगा। तो अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि चलो प्रीलिम तो पास कर दोगे कोई भी हाल में, लेकिन इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचोगे। तो अभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, यू हैव टू साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर बोथ। ठीक है, याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ, आपको खाली प्रीलिम की प्रिपरेशन अभी नहीं है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो वर्किंग लेंथ क्या है कि आपको उस लेंथ तक कैनाल का प्रिपरेशन करना है और ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, फिर दूसरे टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द इंसाइजल एज ऑफ द और द कस्प टिप। ठीक है, कोई भी टूथ ले लो आप, तो यहाँ पे उसकी कस्प टिप हुई और यहाँ पे आपको एंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस उसको ये लोग वर्किंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और आइडियली इट शुड बी 0.5 to 1 mm शॉर्ट ऑफ रेडियोग्राफिक
एपेक्स, ठीक है। फिर apical end of the root canal cemented dentinal junction is 0.5 to 1 मिलीमीटर शॉर्ट, ठीक है। तो ये अभी मैंने जैसे बताया ना कि अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कोई बोलता है कि आप रेडियोग्राफिक अपेक्स के हिसाब से जाइए, जो आप रेडियोग्राफ लोगे तो रेडियोग्राफिक अपेक्स जो होगा ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा सीमेंटेड डेंटिनल जंक्शन से, ठीक है। सीमेंटेड डेंटिनल जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे एपेक्स फॉर्म होना चालू होता है, ठीक है। ये आइडियली ऐसा होता है क्राइटेरिया। तो रेडियोग्राफिक एपेक्स ये हुआ नीचे वाला। और यूअर एपिकल कंस्ट्रिक्शन, जहाँ पे आपका एपेक्स लोकेटर सिग्नल बजा देता है, तो इट इज समवॉट शॉर्ट एज कंपेयर टू रेडियोग्राफिक अपेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वर्किंग लेंथ का क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। कोई रेडियोग्राफिक अपेक्स फॉलो करता है, कोई ये एपेकल कंस्ट्रिक्शन फॉलो करता है। तो हमारा एपेक्स लोकेटर होगा वो एपेकल कंस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा। नैरोएस्ट इट इज द नैरोएस्ट स्पेस, ठीक है, जहाँ पे आपका एपेक्स चालू होगा, ठीक है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, समझे ना। यहाँ पे रेडियोग्राफिक एपेक्स है, आप रेडियोग्राफ लोगे तो यहाँ पे आएगा। और 1 मिलीमीटर शॉर्ट आपका एनाटॉमिकल एपेक्स आएगा, जो फोरामेन बोलते हो ना, एपिकल फोरामेन, वो 1 मिलीमीटर शॉर्ट आएगा। तो अभी बहुत सारी थियरी ऐसी भी है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस या रूटीनली रेडियोग्राफिक एपेक्स से आप थोड़ा 2 मिलीमीटर शॉर्ट रखोगे तो भी चल जाएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, ऐसा कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। Ultimately, your patient should be satisfied. Your patient should not have any complaint. ठीक है। अब वर्किंग लेंथ कैसे कैसे डिटरमाइन करना है, हाउ। तो एक तो आता है कि आप रेडियोग्राफ जो होगा पुराना, उसमें से आप देख सकते हो कि कितनी लेंथ है टूथ की। लेकिन रेडियोग्राफी गलत होगा तो इलोंगेटेड होगा, शॉर्ट होगा, तो हाउ विल यू मेजरमेंट, हाउ विल यू गो फॉर मेजरिंग। तो ये फायदे में नहीं रहेगा। फिर आता है एपेक्स लोकेटर वाइडली यूज्ड। उसका प्रिंसिपल है कि जहाँ पे नैरोएस्ट स्पेस आती है, कम से कम डिस्टेंस होगा कैनाल के अंदर, वहाँ जाके वो सिग्नल आता है और आपको एपेक्स का लोकेशन मिल जाता है, ठीक है। तीसरा आता है टेक्टाइल सेंसेशन बिफोर एपेक्स लोकेटर इन द 2000, जो 2000 की साल थी, 2000 2005 तक, 2010 तक, जहाँ एपेक्स लोकेटर नहीं आया था, वहाँ पे सब लोग टैक्टाइल सेंसेशन पे करते थे, ठीक है। पहले तो एक आइडिया होता है कि कोई टूथ में इतनी लेंथ तो होती है, उस हिसाब से वो जाने देते हैं। और पेशेंट को जैसे ही पेन होता है उससे 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑब्चुरेशन रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अभी बहुत सारे डेंटिस्ट को एपेक्स लोकेटर पर भरोसा नहीं है, बट टैक्टाइल सेंसेशन पर भरोसा है। फिर ब्लीडिंग ऑन पेपर पॉइंट, ठीक है। आप क्या करोगे, पेपर पॉइंट इंसर्ट करोगे, फिर आप देखोगे कि कहाँ पे वो ब्लीडिंग होना चालू होता है, तो वहाँ से आपको 2 मिलीमीटर शॉर्ट रखना है। उस हिसाब से आप वर्किंग लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बार आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाए फिर आपको वर्किंग लेंथ मेजर करना है, ठीक है। पहले आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस होना चाहिए, वरना क्या होगा, थोड़ी कर्व फाइल होगी और स्ट्रेट फाइल होगी, ये दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा। इसलिए यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर कॉर्नल फ्लेयरिंग, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन एक्सेस, देन यू हैव टू गो फॉर वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अभी वर्किंग लेंथ का तो आपको आइडिया आ गया होगा, आप क्लिनिक में काम करते हो, आपने एंडो में देखा होगा कैसे करते हैं कैसे नहीं, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात अभी है नहीं। अभी देखो यहाँ पे ऐसा है, बेस्ट वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन प्रोटोकॉल।
कि आप एपेक्स लोकेटर से मेजर करो और रेडियोग्राफ से कंफर्म करो। ठीक है, तो ये बहुत सारे भी लोग यही टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, अब एपेक्स लोकेटर का क्या क्या इंडिकेशंस है, क्यों उसके एडवांटेजेस है। तो पहला ही एडवांटेज देखो कि वो आपको रेडिएशन से बचाता है। सही बात है, इट डिक्रीजेस रेडिएशन। ठीक है, चिल्ड्रन हु कैन टॉलरेट, कभी कभार डर जाते हैं बच्चे कि ये क्या ले रहे हो, एक्सरे में ठीक से बैठेंगे नहीं। और कभी कभार पेशेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिव, उसकी उम्र ज़्यादा है, सिडेटिव है, ऐसे केस में आपको एपेक्स लोकेटर से कर सकते हो। ठीक है, फिर किसी को गैग रिफ्लेक्स आता है। फिर कभी कभार एपेक्स जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, कोई ना कोई उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसके हिसाब से आप रेडियोग्राफ नहीं ले सकते हो, तभी जाके आपको एपेक्स लोकेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, रेडियोग्राफ क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर टोराई होगा वहाँ पे एपेक्स के रीजन में, तो वहाँ रेडियो ओपेसिटी होगी, तो आपको एपेक्स क्लियरली दिखेगा नहीं, जैसे कंडेंसिंग ऑस्टेटिस में होता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपके जो एक्सरे के एंगुलेशंस है वो भी चेंज करना पड़ेगा, आपके उसको वोल्टेज भी से चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम सीखेंगे ओएमआरडी में, कैसे एक्सरे को इवेल्युएट करना है और कैसे हमको वहाँ पे आगे वो एक्सरे को शार्पन करना है, डार्क करना है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, वरना आप बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन में आगे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता था, एपेक्स लोकेटर होता नहीं है बहुत सारे क्लिनिक में, और उनको टेक्टाइल सेंसेशन पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा आ जाता है। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज तो आते नहीं है एपेक्स लोकेटर के जनरेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देते हैं कि एपेक्स लोकेटर कहाँ पे इन्वेंट हुआ, कहाँ पे आया वो। पहले और सेकंड जो थे ना, ठीक है, वो इम्पेडेंस बेस्ड थे। ठीक है, अभी देखो कभी कभार क्या होता है, फिजिक्स जब आता है ना, इम्पेडेंस, फिर ऑसिलेशंस, वो तो आपको फिजिक्स समझने जाना पड़ेगा। लेकिन पहला और दूसरा था ना वो इम्पेडेंस बेस्ड था, फिर तीसरा वाला था वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आएगा। ठीक है, और चौथा वाला होगा ना वो रेडियो टाइप। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, आप लिख लो यहाँ पे एपेक्स लोकेटर के जनरेशन। तो फर्स्ट में आएगा और सेकंड में आएगा इम्पेडेंस। ठीक है, और वो जनरली इलेक्ट्रिकल के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इम्पेडेंस पे, और थर्ड में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी पर आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिपेंडेंट करते थे। और चौथे में क्या आएगा, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर वो करते हैं। और फिफ्थ में आएगा ड्यूअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे आपको नोट्स में बना देना है। फिर ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर आएगा सिक्स्थ। सिक्स्थ में आएगा इंटरफेरेंस उसमें होगा नहीं, और मल्टी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे टेबल बना देना है। एपेक्स लोकेटर का फर्स्ट इम्पेडेंस बेस्ड,
सेकेंड इम्पेडेंस बेस्ड, ठीक है। और फर्स्ट वाला था ना, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर था, ठीक है, सेकेंड भी। और थर्ड में क्या आएगा, कंपैरेटिव आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपैरेटिव इम्पेडेंस। और फोर्थ जो आएगा ना, वो आपको इम्पेडेंस आएगा लेकिन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पर, ठीक है। और फिफ्थ में ड्यूअल फ्रीक्वेंसी, उसमें दो आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपको कैपेसिटेंस भी मिलेगी चेक करने के लिए, और रेजिस्टेंस भी मिलेगा फिफ्थ में। और सिक्स्थ में क्या होगा, उसमें आपको परफेक्ट और स्टेबल वर्किंग लेंथ मिलेगा, क्योंकि उसमें एंटी इंटरफेरेंस है और स्टेबल वर्किंग लेंथ उससे अच्छी मिलेगी, ठीक है। एंटी इंटरफेरेंस और मल्टी फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो कभी कभार ये आपको काम आएगा कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। लेकिन जहाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ फिजिक्स का कोई रोल होता है, तो आपको तो ये थोड़ा रटना पड़ेगा, ठीक है। हमने अभी जो नोट्स बनाई ना, ऐसे ही हमने नोट्स बनाई थी जैसे हमने कोलेजन फाइबर्स में बनाई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वैसे तो कोई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छे हो, मतलब आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं इसमें याद रखने के लिए, ठीक है। और कोई डाउट तो पूछना। अब बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, ठीक है, तो वो आरसीटी में का दूसरा नाम ये भी है, क्लीन, शेप और फील। तो यहाँ फील तो होता है, वो ऑब्जर्वेशन होता है। तो क्लीन और शेप बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन का एम या ऑब्जेक्टिव, क्लीन करना है और शेप देना है। शेप क्यों देना है, ताकि जो भी आप ऑब्जर्वेट करने वाले हो, गट्टा पर्चा, कोई सिल्वर कॉइन्स होते थे पहले, उस हिसाब से आपको शेप देना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या आएगा, आपको टेपर्ड कॉनिकल फॉर्म रखना है, जैसे कि वो नेचुरल शेप को मिमिक करे उसकी तरह ही टेपर देना है। उसके अंदर जो भी टिश्यू है, डेड, लिविंग, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन्स, वो सब आपको निकाल देना है। फिर तीसरा ये है कि आपको जो भी इरिगेंट यूज़ कर रहे हो, सॉल्यूशंस, मेडिकामेंट्स, उसके लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको अपना फंक्शन पूरा करने के लिए जगह अंदर ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कैनाल को वाइड नहीं किया अंदर से ठीक से, तो कैसे आपका इरिगेटिंग एजेंट एपेक्स तक जाएगा और कैसे वो फ्लश करेगा, ठीक है। तो टेपर होना चाहिए, फिर अंदर रिमूव कर देना है सब चीज़ों को, और इनफ स्पेस होनी चाहिए। फिर आउटलाइन फॉर्म, ठीक है, उसमें आप क्या क्या आउटलाइन में ध्यान रखोगे, तो कॉर्नरली वाइडर होना चाहिए, मतलब ऊपर से थोड़ा वाइड होना चाहिए नीचे की कंपैरिजन में। रिटेंशन फॉर्म, ठीक है, जो नीचे टेपर होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप मास्टर कॉन डालोगे तब टग बैक आना चाहिए, ठीक है, वो बोलते हैं रिटेंशन फॉर्म। और रेजिस्टेंस फॉर्म, ठीक है, ये आपको नीचे जो भी एपेकल फोरामेन है कंस्ट्रिक्शन, उसको जितना बने उतना नैरो रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर वो आपने ज़्यादा रख दिया तो वो ओवर फिलिंग बाहर भी चला जाएगा आपका गट्टा पर्चा, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस फॉर्म है। और लास्ट आता है एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन, टू लोकेट एनी एडिशनल कैनल्स एंड रिमूव ऑल पल्प डेब्रिस, ठीक है। तो ये कैनाल में क्या होता है, कभी कभार ये आपकी कैनाल है, तो कभी कभार यहाँ एसेसरी कैनाल भी साइड में होती है, तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये सब कैनाल्स को साइड वाले निकाल देना है, ऐसा वाइड कर देना है।
ठीक है, तो यू हैव टू लोकेट एनी एडिशनल कैनाल्स एंड रिमूव ऑल पल्प डेब्रिस। ठीक है, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन तो अभी इजी हो गया है, पहले हैंड फाइल से करते थे तो दिक्कत होती थी। अभी तो प्रोटेक पर सब फाइल्स का सीक्वेंस भी डिसाइड होता है, एस एक्स होता है, ये होता है, उस हिसाब से आपको मोशंस यूज़ करना है। ठीक है, अब कौन कौन से मोशंस यूज़ कर सकते हो, तो एक तो आता है फाइलिंग, पुश एंड पुल। ठीक है, अगर आप फाइल यूज़ कर रहे हो ना तो पुश एंड पुल कर सकते हो। अगर रिमूवर यूज़ कर रहे हो तो पुश रोटेट करना है और पुल करना है। ठीक है, फिर आता है वॉच वाइंडिंग। ये आपकी फाइल ज़्यादा सेफ रहे, सेपरेट ना हो, इसलिए 2/3 क्वार्टर टर्न्स क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले ऐसे करना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे करना है और फिर आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये मोशन हम कब करते हैं, जब आपको इनिशियली कैनाल को ढूंढना है, कैनाल का पाथवे इनिशियली करना है। तो ये पुराने सब मेथड्स है। अभी तो क्या है, उसकी फाइल ही आ गई है कैनाल नेगोशिएशन के लिए। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट पोर्टेबल फाइल्स होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है। उसमें शेप वाली फाइल होती है, ग्लाइड पाथ वाली फाइल होती है, तो ये सब हो जाएगा। तो ऐसे अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आपको दो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो आप रियली करते नहीं हो प्रैक्टिकल में वो भी याद रखना पड़ेगा, और जो भी रिसेंटली एडवांस हो गया है, ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, क्वार्टर टर्न क्लोज क्लॉकवाइज, आपको क्वार्टर टर्न करना है। ठीक है, फिर एपेकल प्रेशर देना है और फिर आपको काउंटर क्लॉकवाइज कट करना है और एपेकल प्रेशर से। ठीक है, तो पहले यू मोशन दिया और फिर यू मोशन दिया, तो वो आएगा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो उसकी फाइल्स भी आती है, फ्लेक्स ओ और फ्लेक्स आर। और अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको खाली एमसीक्यू पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स में आप क्या करोगे। ठीक है, तो क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज, 1/4 क्लॉकवाइज विथ एपेकल प्रेशर। ठीक है, नीचे एपेकल प्रेशर, फिर काउंटर क्लॉकवाइज और वहाँ भी एपेकल प्रेशर। ठीक है, तो ये उसका बैलेंस्ड फोर्स का थ्योरी आया। नाउ वी कम टू इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक। अलग अलग रोल्स होते हैं। ठीक है, एक तो स्टेप बैक आता है, एपेकल टू कॉर्नल। ठीक है, ये टूथ होता है, तो आपको एपेक से ऊपर प्रिपरेशन जो करते हैं ना, वो है बैलेंस्ड प्रेशर और स्टेप बैक। ठीक है, और ऊपर से नीचे ये अभी फेमस है, क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं, ऊपर से वाइड कर देते हैं, फिर तो आराम से ऑब्जर्वेशन में भी हेल्प आती है और इसमें सेपरेशन के चांस कम होते हैं। ठीक है, कॉर्नल टू एपाइकल, स्टेप डाउन, डबल फ्लैट, क्राउन डाउन, हाइब्रिड। लेकिन ये जितनी भी टेक्निक्स है ना, वो ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। ठीक है, अभी जो पुराने डेंटिस्ट होते हैं वो तो प्रोटेपर का यूज ही नहीं करते, वो हैंड फाइल से ही मस्त आरसीटी कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मैन्युवरिटी, डेक्सटेरिटी एंड योर स्किल्स। ठीक है, तो स्टेप बैक में आप क्या करोगे, नीचे पहले एक एपेकल मास्टर फाइल सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर ऊपर आप वाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्टेप बैक में नीचे से ऊपर टेपर में जाना है। ठीक है, आप जो भी फाइल से चालू करते हो, फॉर एग्जांपल आपने चालू किया 15 नंबर के फाइल से, पहले पहले तो आप 10 नंबर फाइल से एक्सेस लोगे कैनाल में। ठीक है, अभी जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आरसीटी नहीं किया है तो भी आप मुझे बोलना, तो भी मैं आपको समझाएंगे उस लैंग्वेज में। मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक सब लोगों ने आरसीटी तो किया ही किया है। तो आप जनरली स्टेप बैक के तो आप फैन ही होंगे। पहले 10 नंबर की फाइल डालिए, फिर 15 नंबर की, फिर आप इरिगेट करना,
फिर 20 नंबर की, फिर इरिगेट करना वर्किंग लेंथ तक, फिर 25 नंबर की। तो ये सब स्टेप्स उसमें आते हैं, ठीक है। फिर आप जब 30 नंबर की फाइल यूज़ करते हो तो एक वर्किंग लेंथ माइनस एक करके आपको वहाँ तक प्रिपरेशन करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपको कितनी प्रिपरेशन आगे ले जानी है आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। अब रिकैपिचुलेशन वो क्या होता है? आपने 20 नंबर की फाइल डाली, तो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग 25 नंबर फाइल, यू कैन ऑल्सो गो विथ 15 नंबर फाइल, ठीक है, फॉर क्लियरिंग ऑल द डेब्रिस। तो इट इज कॉल्ड रिकैपिचुलेशन। री स्पेलिंग मिस्टेक, रिकैपिचुलेशन, ओके। हम जो आपको जीपीएससी की कोचिंग के बारे में बता रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ याद रखनी होगी तो रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आपको आइडिया आएगा। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी टेबल हो, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। कल जो पढ़ने जाओ उससे पहले आज जो पढ़ा था उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। दिस रिकैपिचुलेशन हेल्प्स यू अ लॉट इन पासिंग दिस एग्जाम, ठीक है। हमारे फॉक्सिट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बंद हो जाएगा, वापस चालू कर देते हैं। थोड़ा इश्यू आ गया है पीडीएफ रीडर में, सॉल्व कर देते हैं, तब तक वेट करिए। दो मिनट में। अभी ये फॉक्सिट रीडर जो होता है पीडीएफ का, परेशान कर रहा है अभी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मोशंस और स्टेप बैक टेक्निक। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए। थोड़ा इजी है एंड क्योंकि हम बार बार आरसीटी तो करते हैं क्लिनिक में, तो ये कोरिलेशन है खाली, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोसेस समझाइए, आपको ये पढ़ लेना है। और अगर आपको कुछ दिक्कत है समझने में तो आप आराम से हमको बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस स्टेप बैक के, स्टॉप मिलेगा अच्छा, कॉर्नल फ्लेयर हो जाएगा क्योंकि ऐसा हो जाएगा, ऊपर से फ्लेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, फाइल टेंड्स टू स्ट्रेटन इन द कैनाल, ठीक है। कभी कभार जो फाइल होती है ना वो सीधी हो जाती है कैनाल के अंदर। वर्किंग लेंथ कभी कभार मतलब लॉस हो जाता है, हम जो मेजर करते हैं उस हिसाब से ये प्रिपरेशन करते करते हमारा वर्किंग लेंथ प्लस और माइनस हो जाता है। और ये एक टेक्निक से क्या मेजर डिसएडवांटेज है, आप जो भी प्रिपरेशन करते हो ऊपर से नीचे जाने में, तो जो डेब्रिस होगा वॉल्स में से वो तो नीचे जाएगा, तो ये कैनाल के ब्लॉक के चांस होते हैं। ये ना हो, ब्लॉक ना हो, इसलिए आपको इरिगेशन अच्छी तरह से करना है। बिटवीन एवरी फाइल्स यूज्ड यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर इरिगेशन, ठीक है। अब आता है क्राउन डाउन टेक्निक। क्राउन डाउन में क्या आता है, ऊपर का जो पोर्शन है लार्ज के फाइल, ठीक है, ऊपर की, वो ऊपर का वाइड कर देना है और धीरे धीरे नीचे आपको जाना है। तो ये आपको याद रखना है।
आपको एपेकल प्रेशर देना नहीं है, बिल्कुल रिमिंग एक्शन देना है। ऊपर का ये पोर्शन आप वाइड कर दोगे तो आपको नीचे एपेक्स तक जाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो स्टेप बैक में क्या होता था, छोटी फाइल से चालू करते हैं 10 नंबर से, यहाँ पे बड़ी फाइल से चालू करते हैं 60 नंबर की, 45 से कर सकते हो, 50 से कर सकते हो, सब आपको डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आता है बैलेंस्ड फोर्स टेक्निक। अभी हमने आपको बताया बैलेंस्ड फोर्स में लोग क्या करते हैं, थोड़ा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे दोनों साइड एपेकल प्रेशर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक क्या खराब बात है, एपेक्स इज प्रिपेयर्ड मच लार्जर देन ऑल अदर टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे जो एपेक्स आएगा ना वो थोड़ा लार्जर होगा, तो आपको क्या होगा, मास्टर जो कौन होगा वो थोड़ा डायमीटर में ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के टाइम। ठीक है, तो भी आप स्क्रीन पर देख लो, इंस्ट्रूमेंटेशन आप ठीक नहीं करते हो तो कैनाल का जो यहाँ आना चाहिए फाइल का एपेक्स, वो यहाँ पे परफोरेट कर देता है बाहर। फिर एपेक्स की जगह जो आना चाहिए वहाँ से एक जिप बन जाता है, ठीक है, साइड में, और एपेक्स के तक नहीं पहुँचता और बाजू में लेज बन जाता है। क्योंकि पहले क्या थी, एंड फाइल्स थी ना वो रिजिड होती थी, तो बार बार आपको लगेगा कि ये सही है, सही है, लेंथ सही है, तो यहाँ पे एक फॉल्स स्टॉप आ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेज। जिप का मतलब दो साइड से आप जा सकते हो। ठीक है, फाइल एक बार डालोगे तो ऐसी स्ट्रेट जाएगी, एक बार ऐसी जाएगी, तो ये जिप जैसा बनाता है। ठीक है, ओपन करते हो तो थोड़ा वाइड हो जाता है। फिर परफोरेशन, टूथ को परफोरेट कर देंगे, तो परफोरेशन के बाद क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादातर वहाँ पे एमटीए अप्लाई करते हैं। ठीक है, परफोरेशन के केसेस में। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन के टाइम ये सब प्रॉब्लम आते हैं। वर्किंग लेंथ में दिक्कत, लेज बन जाता है, जिपिंग उसका मतलब एपेक्स वाइड हो जाता है, स्ट्रिपिंग मतलब साइड से परफोरेट हो जाता है, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन एपेक्स के बाहर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। कुछ लोग तो ऑब्जर्वेशन भी एपेक्स के बाहर कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट ने अच्छे रुपए दिए होते हैं तो भर भर के ऑब्जर्वेशन कर दो, भले ही एपेक्स लिमिटेड हो, उसके बाहर भी आप आराम से वो कर देना है, लेकिन वो गलत होता है। फिर पेशेंट आता है कि सर ये तो दिक्कत हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर से रीआरसीटी कर दो। ये अभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आरसीटी में। फिर आता है फाइल ब्रेकेज, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन। ठीक है, अब देखो, ये हैंड फाइल्स के बारे में जो बताया वो था। अभी आ रहा है हमारा नाइट टाइप फाइल्स, निकेल टाइटेनियम एलॉयज, तब जाके ये सब ड्रॉबैक्स अवॉइड हो जाते हैं। ठीक है, ये सब अवॉइड करते हैं। अब जो भी आप बीएमपी कर रहे हो प्रोसीजर के टाइम, उसमें इरिगेशन, इरिगेशन क्या क्या फ़ायदा होता है, एक तो फ्लश करता है बैक्टीरिया सब चीज़ों को, लुब्रिकेट करता है, ठीक है, डेब्रिस को निकालता है, नेक्रोटिक टिश्यू होगा उसको डिसॉल्व कर देगा, स्मेयर लेयर को रिमूव कर देगा, इन शॉर्ट कैनाल को स्टेराइल कर देगा, साफ कर देगा। ठीक है, इरिगेशन। कभी कभार ऐसे भी इरिगेंट एजेंट होते हैं जो पे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो स्टेराइल करते हैं, और सक्सेस ऑफ आरसीटी। अभी एक नया ट्रेंड आया है कि लास्ट आप जो इरिगेंट यूज़ करोगे ऑब्जर्वेशन से पहले, वो आप क्लोरहेक्सिडिन से यूज़ कर लो। तो कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि क्लोरहेक्सिडिन जो होता है ना, वो एंडोडोंटिक फ्लेयर अप जो होता है ना, उसमें आपको यूज़ करना है। तो खरे रियली यही फ़ायदा था कि एंडोडोंटिक के रिपीटेड केसेस होते हैं ना, उसमें क्लोरहेक्सिडिन शुड बी used. But nowadays, what people do, they go with chlorhexidine as the last irrigant solution before final obturation. This also helps in their successful uh,
आउटकम ऑफ द आरसीटी। ठीक है, ये नहीं कि यही यूज होता है। ठीक है, एक जगह यूज नहीं, आप कहीं भी जगह क्लोरेक्सिन यूज कर सकते हो, आपको थोड़ी कोई मना करने आएगा। ठीक है, अब आइडियल इरिगेंट सॉल्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा, एंटी माइक्रोबियल होना चाहिए, इनएक्टिवेट कर देगा टॉक्सिन्स को, डिसॉल्व कर देगा, लुब्रिकेंट होना चाहिए, सरफेस टेंशन उसका लो होना चाहिए ताकि वो अच्छी इनएक्सेसिबल एरियाज में जा सके, डिसॉल्व द स्मीयर लेयर। ठीक है, स्मीयर लेयर को डिसॉल्व करने के लिए। और बेस्ट कौन सा है, तो 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होगा ना, वो बेस्ट यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताइए। अब कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी आया था कि आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होगा ना, उसको थोड़ा वार्म कर देना है और फिर अगर आप यूज़ करोगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस होगी। बट ये सारे रिसर्च होते हैं, आपके हिसाब से ये ट्रीटमेंट करना होता है, आपके पेशेंट्स को क्या अच्छा लगता है, आपकी आरसीटीज़ के आउटकम्स कितने अच्छे होते हैं, वो सब आपको डिपेंड करना होता है। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू चेक इफ द कैनल्स आर क्लीन और नॉट। ठीक है, तो ये तो प्लेस से गॉस कर दो केस एक्सेस कैविटी के, फिर आप गॉस को देखो इरिगेट करने के बाद कुछ है, कुछ दिक्कत है कि नहीं। तो ये कौन करेगा अभी। ठीक है, हम तो अपने पर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है कि हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो बढ़िया से बढ़िया करेंगे। अब इरिगेटिंग सॉल्यूशंस, उसकी प्रॉपर्टीज, वो 5% टिश्यू डिसोल्यूशन करता है, और प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग, वो डिग्रेड करेगा, पीएच उसका ज़्यादा है, वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाता है, लाइट से डिकम्पोज होता है, पेल ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, और ख़राब स्मेल आता है, ऑर्डर ख़राब आता है, पेशेंट को कंफर्ट नहीं होता है। इसलिए हम जब भी टूथ में इरिगेट करते हैं तो टूथ के ऊपर ही सक्शन रख देते हैं। लेकिन ये दिक्कत है, स्मीयर लेयर रिमूव नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ईडीटीए का लुब्रिकेशन यूज करते हैं बीच में। ठीक है, थ्री मेन रिएक्शंस, सोपिंग ऑफ लिपिड्स, अमीनो एसिड्स का न्यूट्रलाइजेशन, और क्लोर अमीनेशन। ठीक है, तीन रिएक्शंस होते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड में। फिर एंटीबैक्टीरियल में यूज करना है तो लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे, और नेक्रोटिक ज़्यादा खराब दांत है तो 5% तक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, pre-treatment with calcium hydroxide can enhance tissue dissolving capacity of NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो आपको कभी कभार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो उसके साथ, और ईडीटीए भी यूज़ कर सकते हो। ईडीटीए से क्या फ़ायदा होगा, जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा वो बैक्टीरिया को निकाल देगा, और ईडीटीए होगा वो क्या करेगा, स्मीयर लेयर को निकाल देगा। ठीक है, अब आता है क्लोरेक्सिडिन। अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर ये यूज़ रिपीटेड फेलियर जो होता है, एंटीबायोटिक फेलियर, आरसीटी फेल होती है तब यूज़ होता है। लेकिन अभी तो आपको पता है कि कोई मार्केट में अच्छी चीज़ आती है तो लोग तो भर भर कर यूज़ करना चालू कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियसिडल, फिर कोई प्रोटीन नहीं डिजोल्व होता उसमें, स्मीयर लेयर भी नहीं निकलता, स्टेन्स करता है। देखो, हम जो क्लोरेक्सिन माउथ वॉश बोलते हैं ना पेशेंट को कि आपको ये माउथ वॉश यूज़ करना है, तो ये स्ट्रिक्ट वार्निंग होती है कि माउथ वॉश यूज़ करने के बाद आधे कलाक तक कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, पेशेंट को ये बोलना है, क्योंकि वो स्ट्रेन कर देता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ भी ऐसा चीज़ आया है, अगर NaOCl के साथ आप मिक्स करोगे तो बेस्ट एंटीबैक्टीरियल होगा वो इफेक्ट। ठीक है,
तो ये आप याद रखो कि कहीं ना कहीं ये लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड को मेन एजेंट समझ रहे हैं और ये सब एसेसरीज है, और दोनों मिलाकर अच्छी तरह से इफेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर आता है ईडीटीए, स्मीयर लेयर को रिमूव करना है। बैक्टीरिया के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। वो कब होता है यूज? बिफोर ड्रेसिंग द कैनाल और ऑब्चुरेशन से पहले। बैक्टीरिया ऊपर कोई इफेक्ट नहीं उसका। ठीक है। फिर एमटीएडी। ठीक है। तो एमटीएडी जो है ना, वो लेटेस्ट इंट्रा कैनाल इरिगेंट है। उसके भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि वो एमटीएडी कैसे काम करता है कैसे नहीं। तो आप ये पढ़ लो, और अभी आपको कोई डाउट हो इसमें तो मुझे बताइए। अब ये लोग नए नए एजेंट्स लेते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये लोगों ने क्या किया, एक एनारोमेटिक इरिगेंट था, ठीक है, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन ऐड कर दिया, एंटीबायोटिक। ठीक है। फिर साइट्रिक एसिड और ट्विन एटी। तो ये आपको एमसीक्यू के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एमटीएडी का कंपोजिशन क्या है। ठीक है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन है, साइट्रिक एसिड है और डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट के फॉर्म में क्या है? ट्विन एटी। ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो बेस्ट बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी है, देखो, एनो सोडियम हाइपोक्लोराइड और ईडीटीए से भी ज़्यादा उसका फंक्शन है। स्मीयर लेयर भी रिमूव करता है, डेंटेनल ट्यूब्स को भी ओपन करता है, और डॉक्सीसाइक्लिन की जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो लंबे समय तक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। ठीक है। तो ये एमटीएडी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तब जाके आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि एमटीएडी क्या था। ठीक है। फिर ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि 1.3 सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करना है और फाइनल रिंस एमटीएडी से करना है। कुछ लोग फाइनल रिंस फ्लोरेक्सिलिन से करते हैं, अभी कुछ लोग फाइनल रिंस एमटीएडी से करेंगे। तो ये सब थ्योरी के जो अप्रोच है वो आपको क्या रखना है, याद रखना है। प्रैक्टिकल में तो हम करते नहीं है वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो अभी अगले लेक्चर्स में मैं पूछूंगा एमटीएडी क्या होता है, उसमें क्या कंपोनेंट होता है, डिटर्जेंट कौन सा होता है उसमें। ठीक है। याद रखना। फिर नया कुछ आया मार्केट में, अल्ट्रासोनिक इरिगेशन। ठीक है। आप अल्ट्रासोनिक के एक्टिवेटर होते हैं उससे भी आप इरिगेट कर सकते हो। एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग करना है और स्क्रबिंग इफेक्ट करना है। ठीक है। फाइल्स मस्ट बी स्मॉल एंड लूज टू अचीव ऑप्टिमम क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से कैनाल की वॉल्स को क्लीन करना है। ठीक है। उसके एडवांटेजेस, स्मीयर लेयर रिमूव कर देता है, डेब्रिस भी रिमूव कर देता है। बट डिसएडवांटेजेस, कभी कभार हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कितना काम करेगा कितना नहीं। और कुछ सिस्टमिक पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे पेस मेकर रखा होता है, कुछ एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम ये काम नहीं कर सकते। और कभी कभार वो एक्सेस वॉल को भी रिमूव कर देगा। ठीक है। तो ये हमारे साथ उसका मतलब ये होगा कि प्रिसिशन नहीं रहेगा इसमें, डिसाइड नहीं है उसका काम, काम कर देगा लेकिन ज़्यादा भी कर देगा तो भी इट्स ए लॉस फॉर अस। ठीक है। अब आपको ये होगा कि स्मीयर लेयर का मतलब क्या है सर। तो जब भी आप कैनाल साफ करोगे तो कैनाल की वॉल ऊपर एक चिपका हुआ मतलब एडरेंट लेयर जम जाएगा, उसमें डेंटिन की डेब्रिस होगी, पल्पल टिश्यू होगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगी। कभी कभार वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर भी चली जाती है ये लेयर। ठीक है। तो एचेंट जब हम पढ़ा था एचेंट, तब यही आया था ना कि स्मीयर लेयर को रिमूव कर देना है। ठीक है। ताकि
जो कंपोजिट वाले एजेंट होते हैं वो आराम से वो माइक्रोमैकेनिकल बॉन्डिंग कर सके। अब स्मीयर लेयर को रिमूव क्यों करना है? क्योंकि पहले तो देखो उसका कंपोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको अवॉइड करना है। खराब टिश्यू उसको अवॉइड करना है। और कभी कभार वो अगर रहेगा और आप रिस्टोरेशन कर दोगे तो इन फ्यूचर वो स्मीयर लेयर निकलने जाने के बाद रिस्टोरेशन की साइड से लीकेज चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो लीकेज। ठीक है, तो माइक्रो लीकेज से मुझे एक क्वेश्चन याद आया। amalgam is सेल्फ सीलिंग एजेंट बिकॉज, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है। एमलगम को सेल्फ सीलिंग एजेंट हम क्यों बताते हैं? कमेंट कीजिए, फिर ये आंसर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एमलगम को सेल्फ सीलिंग एजेंट हम क्यों बताते हैं? Why is amalgam called a self-sealing agent? तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि which of these is a self-sealing agent? किसी को नहीं पता है क्यों है सेल्फ सीलिंग एजेंट? तो आप ये भी बताइए कि वी डोंट नो द आंसर, क्योंकि एक एटिकेट्स ये भी होते हैं इंटरव्यू में कि आपको नहीं आता है तो बोलना है डोंट नो, तो हम बताएंगे। वरना वी विल थिंक दैट यू आर trying to find or trying to think। वेरी गुड। माइक्रो लीकेज होता है उसकी अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। वो कोरोजन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें, ठीक है, एमलगम में, वो एक माइक्रो लीकेज के कारण वो साइड में सेल्फ सीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, एमलगम होता है ना, उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है माइक्रो लीकेज। वो क्या होता है, उसके कोरोजन बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो निकलते हैं और आजू बाजू रिस्टोरेशन के आजू बाजू वहाँ पे लग जाते हैं। तो वो लगते हैं और वहाँ पे आजू बाजू सील कर देते हैं, इसलिए उसको सेल्फ सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ दिस इज ए सेल्फ सीलिंग एजेंट। बाकी सब प्रॉपर्टी में क्या होता है, बाकी सब मटेरियल में, कंपोजिट में उल्टा होता है। कंपोजिट हम ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं? आपने रिस्टोरेशन रख दिया, फिर यहाँ साइड में से गैप हो जाएगा वेयर एंड टेयर के हिसाब से, उसमें लीकेज होता है। तो कंपोजिट और एमलगम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई एमलगम इज द बेस्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल। ठीक है, बेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी लॉन्जेविटी, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही बढ़िया होती थी। खाली एक ही प्रॉपर्टी उसकी अच्छी नहीं है, वो है एस्थेटिक्स। ठीक है, वो आगे के दांत पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो।
अब इरिगेशन के प्रोटोकॉल, ठीक है, ईडीटीए यूज़ करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट करना है, स्मीयर लेयर को क्लियर कर देना है, इंट्राकेनल मेडिकामेंट दे देना है, फिर क्लोरेक्सिडिन यूज़ करना है, और फिर आपको स्मीयर लेयर करना है और ऑब्चुरेशन आपको कर देना है। ठीक है, ये हम रूटीनली करते ही है, कोई नया चीज़ नहीं है आरसीटी के टाइम। अब दो विजिट के बीच कैनाल के अंदर आप कौन कौन से मेडिकामेंट्स दोगे? तो मेडिकामेंट्स के फायदे क्या? तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, या हीलिंग इफेक्ट चाहिए, या थेरापेटिक इफेक्ट चाहिए, वो उसके आंसर है। ठीक है, आइडियल कौन कौन से हैं? ठीक है, आइडियल मेडिकामेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? एक तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, अगर पस भी होगा अंदर, ब्लड भी होगा तभी भी। इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग, लो सरफेस टेंशन। लो सरफेस टेंशन से क्या होता है? इट विल बी एबल टू फ्लो easily into narrow spaces। ठीक है, फिर रिड्यूस पेन एंड हीलिंग। जो इंट्राकैनल मेडिकामेंट होगा वो आपको जो रूट कैनल ट्रीटमेंट के टाइम पेन होता है उसको भी कंट्रोल कर देगा और हीलिंग को इंड्यूस करेगा। अब बहुत सारे मेडिकामेंट्स है, ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड्स है, एसेंशियल ऑयल है, एल्डिहाइड्स है, तो ये हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले। ठीक है, आपको ये नोट्स मिल जाएगी, तो ये आपको आराम से ये थोड़ा याद रख लेना है। ठीक है, पीबीएससी पेस्ट देख लो यहाँ पे, उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेनिसिलिन होता है, बैक्टीट्रासिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है और कैप्रिलेट होता है। ठीक है, तो ये आपको पल्स में देखने को नहीं मिलेगा, पीबीएससी पेस्ट। लेडर मिक्स तो हमने करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये इतने सारे अलग अलग इंट्राकैनल मेडिकामेंट्स मिलेंगे, फिनोलिक कंपाउंड्स होंगे, फिर एसेंशियल ऑयल होंगे, एल्डिहाइड्स, हेलोजन्स, अलग अलग। ठीक है, और हमारा प्यारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यू मस्ट नो दिस थिंग्स, क्योंकि ये पीड़ों में भी आता है, पेरियो में भी आता है, औरतों में भी आता है, सब जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। तो ये देखो पीएच उसका हाई है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, एंटीसेप्टिक एक्शन है। ठीक है, फिर इट कैन बी इजीली बफर्ड बाय डेंटिन एंड लॉस इट्स एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट डेड बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया जीवित नहीं है फिर भी उसमें एक्टिव होगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट प्रीफर्ड यूज्ड इंट्राकैनल मेडिकामेंट। ठीक है, यह एक अच्छी बात है। अब कभी कभार कुछ मटेरियल जिसके फायदे होते हैं उसके ड्रॉबैक भी होते हैं, वो कैल्सिफिकेशन कॉज कर देता है, तो 3 वीक्स के बाद उसको चेंज कर देना है। ठीक है, ये याद रखना है। और ई फिकालिस, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रेजिस्टेंट होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? क्लोरेक्सिडिन ग्लूकोनेट यूज करना है इंट्राकेनल मेडिकामेंट में। ई फिकालिस कब होते हैं? जब एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट फेल होती है या एंडोडोंटिक फ्लेयर अप। ठीक है, आरसीटी के बाद तो पेशेंट को बैक्टीरिया काउंट कम होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार फेल होती है आरसीटी और एंडोडोंटिक फ्लेयर अप हो जाता है, एग्रेसिव वहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे केस में ई फिकालिस ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिखा ही है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद एंडोफेलियर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो हमने कैसे याद रखा था, देख लो आप, कभी कभार थोड़ी ये ट्रिक भी काम आएगी। एंडोफेलियर, तो यहाँ एफ आया तो फिकालिस और ई फिकालिस, देखो ऐसे भी आप याद रख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब वो ई फिकालिस की क्या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है? दे कैन सर्वाइव एट लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर एंड विथस्टैंड स्टारवेशन। उसको अगर कोई न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो भी वो विथस्टैंड कर देंगे, और वो बायोफिल्म्स बना देते हैं कैनाल्स के अंदर। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो पीएच लो होगा तो भी वो सर्वाइव करेंगे और हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव
करेंगे। तो ये उसकी ड्यूरेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से वो ज़्यादातर एंडोडोंटिक फेलियर के केस में पाए जाते हैं। अब विपिंग कैनाल्स क्या होते हैं? कभी कभार टूथ में एपिकल रीजन में इतने खराब हो जाती है कंडीशन कि पस फॉर्म हो जाता है और वो बार बार पस ड्रेन होता ही जा रहा है। उसमें आपको टाइम लगेगा हील होने में। ठीक है, तो रेडियोलोशन से दिखेगी, एक्सुडेट आएगा। ठीक है, और वो एक बार ट्रीटमेंट करोगे तो बंद हो जाएगा, फिर वो रीअपेयर होगा। ठीक है, ऐसा समझो कि पस बार बार एक्सुडेट होता है, वो बार बार कैनाल से बाहर आता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रिपिंग कैनाल्स को मैनेज करने के लिए क्या करना है? आपको कैनाल को ड्राई करना है, कैनाल को इरिगेट कर देना है, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, नॉन सेटिंग, ठीक है, पाउडर, पेस्ट फॉर्म नहीं, नॉन सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, और बाद में आपको उसका आउटकम देखना है। ठीक है, आप अगली बार देखोगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई हो जाएगा, चला जाएगा, और उसके अंदर आप आराम से ऑब्चुरेट कर सकते हो। तो विपिंग कैनाल्स के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ आर इंट्राकैनल मेडिकेशंस अप्लाइड? तो बहुत सारे आंसर्स होंगे उसमें, अप्लायंस होंगे, मटेरियल्स होंगे। ठीक है, तो इंजेक्ट कर सकते हो, कॉटन पैलेट भी रख सकते हो, लेंटिलो स्पाइरल भी रख सकते हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेम्पराइजेशन, ठीक है, टेम्पराइजेशन में क्या होता है? गुड एंडो बट पुअर कोरोनल रिस्टोरेशन will have fire failure than poor endo with good restoration। ठीक है, अब आरसीटी आपने बढ़िया की, लेकिन क्राउन पर जो रेस्टोरेशन देते हो आरसीटी के ऊपर वो खराब दिया तो फेल होगा। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि आरसीटी के बाद जो भी आप रेस्टोरेशन दे रहे हो पोस्ट रूट कैनाल फिलिंग, ठीक है, वो आपको बढ़िया होना चाहिए। तो टेम्पररी जो मटेरियल होता है वो आपको पहले तो ये देखना है कि वो सलाइवा और बैक्टीरिया को अगेंस्ट काम करता है, वो सील कर देगा आपकी रूट कैनाल की जो कैनाल से उसको। अच्छी तरह से एस्थेटिक्स होना चाहिए और अप्लाई और रिमूवल में इजी होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्पराइजेशन मटेरियल क्या है कि आपने आरसीटी की और तुरंत ही परमानेंट फिलिंग नहीं करना है, तो आप टेम्पररी मटेरियल अप्लाई करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी तो रेडीमेड टेम्पररी मटेरियल आ गया है, पहले क्या होता था, जिंक ऑक्साइड यूटिनॉल यूज करते थे। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आरसीटी के करने के बाद कॉटन ऊपर रख देना है, उसके ऊपर टेम्पररी फिलिंग करनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे नहीं रखना है, कुछ लोग बोल रहे रखना है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है? टेम्पररी फिलिंग आप इजीली रिमूव कर सकते हो और टेम्पररी फिलिंग को अंदर जाने से रोक सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो वो टेम्पररी फिलिंग की मटेरियल की थिकनेस कम कर देगा, टेम्पररी के अंदर वो क्वेश्चन जैसा होगा और रिस्टोरेशन की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। आपने अगर कॉटन रखा है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के नीचे, तो कभी कभार जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की जो इंटीग्रिटी होगी, स्टेबिलिटी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उससे रिस्क भी होता है लीकेज के अंदर, और टेम्पररी मटेरियल के साथ वो एडेप्टेशन भी सही नहीं होगा उसका। तो कभी कभार कोई भी चीज़ करते हो ना, उसके दोनों फायदे हैं। ठीक है, फायदे गैर फायदे। नाउ cotton pellet should be placed over the canal orifice and not the pulpal floor। तो ये सब चीज़ें हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये उसके क्वेश्चंस कभी कभार आते नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब टेम्परेरी के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होता है ये सब बताया है। जिंक ऑक्साइड होता है, 3M ESP होता है,
कभी कभार कैप्स आते हैं कि आप इजीली यूज़ कर सकते हो। कोई लोग बोलते हैं कि जीएससी भी यूज़ करते हो, कंपोजिट रेजिन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर टेम्पराइजेशन ऑफ एन एक्सेस कैविटी विथ ए रेस्टोरेशन। ठीक है, तो रिस्टोरेशन टाइप कौन सा यूज़ करना है। अगर एमालगम है तो आपको कैविट या फिर ये आईआरएम यूज़ करना है। जिंक फॉस्फेट एंड जिंक पॉलीकार्बोनेट शुड नॉट बी यूज्ड। एमालगम के साथ जिंक फॉस्फेट वाला यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फिर कंपोजिट होगा तो जेडोई या कैविट। ठीक है, वो आपको यूज़ करना है। फिर आएगा गोल्ड, गोल्ड के साथ कैविट और ये आईआरएम। ठीक है, पीएफएम में भी आईआरएम। आईआरएम क्या होता है? इंटरमीडिएट रिस्टोरेटिव मटेरियल। कोई भी आप ऑप्शन रख सकते हो, दूसरे वाला बीच को मटेरियल होगा वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर फाइनल रिस्टोरेशन अगर रेजिन यूज करना है कंपोजिट, तो आपको जेडोई नहीं यूज करना है। तो अभी आप लिख लो आपकी नोट्स में, कंपोजिट और जेडोई दोनों एक साथ नहीं यूज होते हैं, क्योंकि यूजुनल जो होता है ना वो उसकी पॉलीमराइजेशन को इंटरफियर करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कंपोजिट जेडोई के साथ यूज नहीं कर सकते हो। फिर टेम्पराइजेशन ऑफ ए बैडली ब्रोकन टूथ, बहुत ही खराब दांत है तो आपको कोर बिल्डअप करना है या कोर क्राउन दे देना है। ठीक है, टेम्पररी क्राउन जो देते हो ना, ऐसे क्राउन भी दे देना है। लेकिन ये कौन करता है? अभी पेशेंट को बोलता है कि आज आप टूथ प्रिपेयर, आज आप आरसीटी की है, कल आ जाओ कैप हम लगा देंगे। तो इतने अभी हार्ड एंड फास्ट हो गए हैं। ठीक है, कभी कभार वॉकिंग ब्लीच भी हम टेम्पराइजेशन से कर सकते हैं। ठीक है, और एपेक्सिफिकेशन के बाद भी हम टेम्पराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पराइजेशन मतलब ऐसा मटेरियल जो आपको परमानेंट ट्रीटमेंट के टाइम वहाँ तक आपको अपना फंक्शन प्रिजर्व कर सके। पेशेंट को वेट करने के लिए दे सकते हैं हम टाइम कि आप ये देख लो 7 दिवस 7 दिन, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। अब आता है ऑब्चुरेशन। कुछ नहीं इसमें, फिल द कैनाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसा लिखा गया है कि अगर नेक्रोटिक टीथ होता है ना, तो आपको लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ड्रेसिंग करना है, इंट्राकैनल मेडिकामेंट, और फिर आपको ऑब्चुरेट करना है। और अगर टूथ वाइटल है तो आप सिंगल विजिट आरसीटी कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आइडियल ऑब्चुरेशन मटेरियल। ये ऊपर जो था ना वो कब ऑब्चुरेटिंग करना है, कैसे करना है, वो था। आइडियल में भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टेबल होना चाहिए, रेडियो ओपेक होना चाहिए मटेरियल, परमानेंट सील होनी चाहिए। ये सब वहाँ पे उसके पॉइंट्स है। ठीक है, अब आए हम आइडियल ऑब्चुरेशन। उसमें रेडियो ओपेक होना चाहिए, बायो कॉम्पेटिबल होना चाहिए, डैमेज स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और कैनाल के अंदर आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो, स्टेरिलाइज कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब कौन कौन से मटेरियल से गट्टा पर्चा है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये हम नोट्स आपको देने वाले हैं, तो आप आराम से ये पढ़ लेना। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन अभी ये आप एक बाय एक सेंटेंस हम करेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी लेंथी हो जाएगी और आपको लेक्चर भी थोड़ा बोर हो जाएगा।
अभी आपके हिसाब से ये पढ़ लेना है। सिलर पॉइंट्स, उसके भी एडवांटेजेस क्या है? नैरो कर्व्ड कैनाल्स होगी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए उसका एडवांटेज, सिलर पॉइंट्स को रिमूव नहीं कर सकते इजीली। फिर बहुत सारी पेस्ट आती है, जेडोई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेजिन। ठीक है, अभी नए नए ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी आते हैं, इपॉक्सी रेजिन वाले सीलर यूज होते हैं। ठीक है, अब जीपी को कैसे स्टेरिलाइज करना है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर इमर्स कर देना है 5.25, और कभी कभार हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कोहल। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अब ये कौन करेगा, तो इससे अच्छा है कि जेडोनोई सीलर यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। ठीक है, अब जीपी को कौन डिसॉल्व करता है? अगर आपको रीआरसीटी करना है, जीपी को निकालना है, तो क्लोरोफॉर्म और यूकेलिप्टस ऑयल आर द जीपी सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर दिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन करोगे तो उससे पहले आपको जीपी कॉन को, कोई भी ऑब्जर्वेटिंग एजेंट होगा उसको आजू बाजू सीलर अप्लाई करना पड़ेगा। सीलर क्या करता है, तो जीपी गट्टा पर्चा और कैनाल वॉल उसके बीच में स्पेस फिल कर देता है। ठीक है, ताकि अंदर कोई स्पेस रह ना जाए। एसेसरी कैनाल्स को भी फिल करता है, टूथ के साइड में यहाँ पे जो एसेसरी कैनाल्स होती है वहाँ भी ये सीलर का रोल है कि वो फिल कर देगा। और वो एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो जीपी को एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, एडेशन भी कर देगा, और इसको मैकेनिकली भी फंक्शनल प्रोसेस वो देगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सीलर्स, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लास आइनोमर, रेजिन। ठीक है, मार्केट में बहुत मिलते हैं, एपॉक्सी रेजिन मिलता है, जिंक ऑक्साइड वाले मिलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है। ठीक है, अब कोई भी सीलर होगा ना, वो टॉक्सिसिटी तो एग्जिबिट करेगा ही। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो एपेक्स से बाहर ना जाए। अब सीलर को कैसे प्लेस करना है? ठीक है, तो अभी आपको बताया था मैंने, लेंटुलोस्पाइरल उसमें आएगा। और अभी जो नए नए सीलर आए, एच प्लस सीलर, वो भी आए मार्केट में। तो बहुत सारे अलग अलग सीलर आए, तो अभी आपको क्या करना है, सीलर के जितने भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है उसके आपको इमेजेस और उसके कॉम्पोजिशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने चाहिए। अब एच प्लस सीलर, उसका क्या फ़ायदा है? लॉन्ग सेटिंग टाइम है। ठीक है, तो लॉन्ग सेटिंग टाइम होगा तो आप वो इजीली, आपके लिए वो क्लिनिक में काम आएगा। क्यों? क्योंकि आप जल्दी आप मिक्स कर सकते हो, तो धीरे धीरे सेट होगा। अगर शॉर्ट सेटिंग टाइम होगा तो आपने मिक्स किया और तुरंत ही पेशेंट में प्लेस करना पड़ेगा, तो कब आप वो कॉटन रोल्स रखोगे, कब आइसोलेशन करोगे, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, कोल्ड लेटरल कंडेंसेशन, आपने गट्टा पर्चा रखा मास्टर कॉन का अंदर, फिर स्प्रेडर से जगह बनाई, दूसरे एसेसरी कॉन्स डाले, ये हुआ कोल्ड लेटरल कंडेंसेशन। वार्म लेटरल कंडेंसेशन, गट्टा पर्चा डाला मास्टर कॉन अंदर, वार्म कर दिया, गट्टा पर्चा साइड में डाल दिया, तो वो हो गया वार्म लेटरल कंडेंसेशन। वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन, आपने पूरे का पूरा गट्टा पर्चा को मेल्ट कर दिया, सॉफ्टन कर दिया और नीचे अंदर तक जाने दिया। ठीक है, तो ये हुआ वार्म वर्टिकल। फिर थर्मोप्लास्टिसाइज्ड, थर्मल टेम्परेचर से गट्टा पर्चा को प्लास्टिसाइज कर दिया, अंदर डाल दिया, फिर वो कोल्ड हुआ तो वो हार्ड हो गया, ये प्रोसीजर है। और सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन, आपने अंदर जो एग्जैक्ट है वो आपको कस्टम मेड पोस्ट बना देना है, उसके हिसाब से सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन कर देना है। जैसे कि कैनाल का जो स्पेस है उसी तरह का वन शॉट में ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए आपकी एग्जाम में।
ठीक है, जीपी अगर शॉर्ट होता है तो आप क्या करोगे, वर्किंग लेंथ को चेक करिए, डब्ल्यूएसपी चेक करिए, ठीक है, और फिर ठीक तरह से जीपी को लेंथ के बारे में चेक कर लीजिए। जीपी ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन से पहले तो टिप को कट कर दीजिए, अदरवाइज एक लार्जर जीपी यूज़ करिए, घटा पर्चा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो मुझे बताइए, हम 2-3 मिनट में डाउट सॉल्व कर देंगे, और आपके ज़्यादा डाउट होंगे तो तब तक डाउट सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स पे शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल पर हम ये अपलोड करने वाले हैं बाद में। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, कल भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप में। लेकिन ये जितना भी टॉपिक्स है वो बार-बार आप वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एमसीक्यूज़ के बारे में हमने जो बात की वो आपको एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटेजी भी थोड़ी अच्छी रहेगी। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल एंड द लेक्चर। कोई डाउट है आपको? हम डेंटिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही धीरे धीरे करके सब टॉपिक समझाएंगे, क्योंकि हमारा एम यही है कि आपका बेस क्लियर हो जाए, तभी आप एमसीक्यू की एग्ज़ाम में आराम से पास हो सकते हो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि टेस्ट ही नहीं दे रहे, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। आप जितने मैक्सिमम टेस्ट दोगे उसमें आपको इवैल्यूएशन होगा आपका। एक थॉट ये है कि आप रीड पढ़ लो सब, फिर टेस्ट दो, ये गलत है, क्योंकि इसमें तो आपको आएगा ही आएगा, सूडो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन आप टेस्ट दोगे, जो नहीं आता वो इवैल्यूएट करना है और वो रीड करना है। ये स्ट्रेटेजी होती है एमसीक्यूज़ में। आप डे बाय डे 20 क्वेश्चन की टेस्ट दोगे तो नए 20 टॉपिक सॉल्व होंगे आपके। तो ये सब आप ध्यान रखिए। हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी यही वेबसाइट पर, medicaldentalacademy.com पर जाओगे, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, फिर आप लॉगिन करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, और ये टेस्ट सीरीज़ अनलिमिटेड है। आप कभी भी अपने टाइम पर कोई भी सब्जेक्ट की टेस्ट बार-बार दे सकते हो, रिपीटेड दे सकते हो, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये टेस्ट में आज भले 10% आते हैं, कल 12 आएँगे, 15 आएँगे, ऐसे करके करके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है? तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना है तो भी ये वेबसाइट पर जाना है, उसमें यहाँ पे सब डिटेल्स दी गई है, नोट्स भी मिल जाएँगे जो भी हमारे पैकेज को सब्सक्राइब करता है। तो गाइज़, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।